Hello and welcome back again on Bright Avishkar. Dear learner, dear student, from this video, already I have uploaded two video, but from this very video, I am going to start yearly current affair for your upcoming exams. Your exams may be state level exam, central level exam, or it may be another exam, but the current affairs role have become very important in every exam. So from today onwards, this is my first lecture on yearly current affair, in which I will cover complete important current affairs of January month. In this lecture, you are going to cover topic like national level current affair, state level current affair, international current affair, sports, awards and index. And before this video, I had also uploaded one video which was based on important days of the month of January. Dear learner, when it comes to current affair, everything plays an important role. Every details plays an important role in our preparation. So from today onwards, I am going to start yearly current affair for you all, because I have been thinking to start for so long time, but due to some reasons, due to not getting proper timing for making video, I thought I should not start. But I was launching and I was approaching to just like those YouTube channel who have good strength of students, so that I can just help many students, millions of students from their platform. But when it comes to just approaching for million students or approaching for big channel of our Jammu and Kashmir, they thought like that sir will take charges from us and definitely we will have to pay huge charges to him. But I am talking just like seriously, I didn't have that intention in my mind, intention to take some money from there just because of the current affair, because I have made all current affairs on my own. So it took a lot of time. I am not going to just take any benefit from you. If you can help me, then try to just revise your current affairs. If you have prepared also, then try to listen only this video. I am not saying you just write each and everything what I have, what I will be teaching you in this lecture. What you have to do, just there are one suggestion which you need to follow. If you want to save your time, make your time productive, then dear learner, dear student, you have to just focus on only one thing, that is listen this video as much as you can. And while listening, firstly listen just like that. But if you will get notes of this lecture, this year monthly current affair of Jan, then definitely you will have to just keep open your just like your monthly current affair. Then keep listening this lecture and keep adding some points. If you think like that the points which I have mentioned here is not sufficient for you, you can include some more topics, like from where you will have to fetch these all important topics from the Google Chrome, because you will get good things from there also if you want to increase the depth of knowledge from this current affair. Why this current affair has become are gonna help you very broad, are gonna help you so just like the in this beneficial way, because in this current affair you are not going to know only the current affair what happened in 2021 and what's happening in 2022 and what will happen, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी. In context of history, your GS subject, you will get many things to learn from this lecture, from these all videos which I am going to upload one by one. This is my first lecture. I will just wait for 3 and 4 days, then I will just take analysis. How many of you are eagerly waiting for these all lectures, then I will upload. Otherwise I will not upload. Your interest will make me just like aware, so that I will keep uploading all the videos, all the lectures for you. And I will try to just give you my PDF of this current affairs. If you want the PDF of these current affairs, kindly you can download from the description. आप डिस्क्रिप्शन से इनको डाउनलोड कर लें. एक बार आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप अपने आप को प्रिंट आउट करें तो या दूसरे किसी सेलफोन लैपटॉप में खोलें तो लेक्चर्स को सुने. एंड आई एम मेकिंग यू श्योर, इफ यू विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, देन डेफिनेटली you are going to cover each and everything for your current affair, for your exam in the portion of current affairs. Because in this lecture we will cover national, state, international, sport, awards, index, authors, books and authors we will also cover.
डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। देन आपके जो रिवीजन हो जाएगी जीएस सब्जेक्ट की, जैसे इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, ये जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट की बात करें, इन सभी की आपको क्या होने वाली, यहाँ से एक रिवीजन भी होने वाली है। सो आई अर्ज यू ऑल, प्लीज काइंडली लिसन दिस ऑल वीडियोज वेरी केयरफुली, वेरी कंसाइजली, वेरी कीनली, so that you will never forget the concept, because revision plays an important role. So at last you can download the PDF from the description. I have just mentioned the link. If I haven't mentioned the link, don't worry, within days I will mention there. सो सबसे पहले हम यहाँ पे नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं, आपको शायद स्क्रीन पे अगर विजिबल ना भी हो डेटा की हेल्प से आप एक बार सुन लें, और जब आपके पास इसका PDF अवेलेबल हो आप PDF को निकालें और मेरी बातों को फिर से सुने, ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो रिवीजन होगी वो स्ट्रांग होगी। लिसनिंग, राइटिंग और यहाँ पे आपके साथ स्पीकिंग के साथ काफ़ी चीज़ें आपको मेमोराइज रह जाती है। जब आप ओरल इनको पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड थिंग्स टू लर्न एंड गुड थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस करंट अफेयर सेशन। तो काफ़ी सेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन हमने कर ली। लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर व्हाट वी आर हियर टुडे। देखो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो नेशनल न्यूज़ के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, एक टर्म होती है क्वेश्चन आर। क्या होता है? एक टर्म है क्वेश्चन आर। आई होप दिस वीडियो इज विजिबल टू यू। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके पास, यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन आर के बारे में। यानी आर जो एक होता है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले से ये शुरू हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। यानी विच आर अ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। 2020 की बात करें, जब मॉनसून सेशन था उस टाइम पे कौन सा आर पार्लियामेंट का सस्पेंड किया गया था, तो वो क्या था? क्वेश्चन आर था। वो क्या था? क्वेश्चन आर था। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन आर, एंड ये क्वेश्चन आर चीज क्या है, ये बला क्या है, इसको समझना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। देखो अगर बात करें रीजन क्या था, सबसे पहले क्यों ये सस्पेंड हुई थी, जो क्वेश्चन आर था क्यों था, क्योंकि जो कोविड पैंडेमिक था, जो कोविड एपिडेमिक है, उसके काफी प्रभाव इन्फ्लुएंस पड़ा था, इसीलिए यहाँ पे लॉकडाउन के कारण ये जो क्वेश्चन आर था इसको सस्पेंड करा गया था। अब सर ये क्वेश्चन आर होता क्या है? देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आर होता क्या है उसकी टर्म भी आपको यहाँ पे मेंशन करी है कि क्वेश्चन आर अगर आपको समझना, आपको पोल्ट्री पे नहीं जाना, यहीं से आपको पता लग जाता है। और कभी भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आर टर्म दिखे तो वहां पे आप कीवर्ड से भी उसका आंसर आप सही दे सकते हो। अगर बात करें ये क्वेश्चन आर बला क्या है, किस तरीके से आप इसको समझें, तो ये जो क्वेश्चन आर होता है ये एक पहला ऐसा आर है लोकसभा जो सेशन होता है, कब? जब यहाँ पे क्या करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, उनको क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी अगर आपने संसद टीवी के ऊपर देखा होगा तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये जो क्या होती है डिस्कशन जो होती है, ये सेशन जो होता है वो लीड किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक दूसरा आर होता है इसके अंदर ही, जिसको आप कहते हैं जीरो आर। देखो अगर आपको मैं करंट अफेयर बताता कौन सा आर, आप बोलते क्वेश्चन आर को सस्पेंड करा गया था, लेकिन अगर आप कोई पूछे आपको ये क्वेश्चन आर होता क्या है, तो इसके अंदर आपको यहां पे जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने खुद से ये एफर्ट्स करे हैं कि आप सभी के लिए ये जो नोट्स है, ये जो करंट अफेयर है, ना ही खाली आपको करंट अफेयर के ऊपर प्रिपेयर करवाए, बाकी आपके जो कोर्स सब्जेक्ट है उनकी रिवीजन भी आपकी करवाती रहे। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू ऑन दीज टॉपिक्स, लेकिन एक बार फिर से मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आपको समझा दूं। अब बात करें जो गवर्नमेंट ने ये कैंसिल करा था, क्या करा था? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी कैंसिल करा था, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड-19 के केसेस थे काफी बढ़ रहे थे। अब बात करें सेशन, अगर बात करें पार्लियामेंट में 3 टाइप्स के सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है, अभी आप फैब के अंदर आपने देखा होगा जो बजट प्रेजेंट हुआ। उसके बाद एक मॉनसून सेशन होता है और तीसरा विंटर सेशन हुआ था। अब यहां पे मॉनसून सेशन को क्या करा गया था? मॉनसून सेशन के अंदर क्वेश्चन आर को सस्पेंड करा गया था। उसके बाद विंटर सेशन को सस्पेंड करा गया, कैंसल्ड करा गया ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। और उसके बाद क्या होता है? एक बजट सेशन होता है, जो अभी आपने देखा। तो इस तरीके से आपको ये टर्म समझ में आ जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को फोकस करें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। आपने देखा होगा कि अभी अभी सोमनाथ जो टेम्पल है गुजरात के अंदर जो लोकेटेड है, वो अभी ज़्यादातर लाइमलाइट में है। अब इसकी बात करें तो ये 2021 की बात करें हम जैन मंथ की, तो उसके जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया? किसी और को नहीं, हमारे इंडिया के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट जो है बोर्ड जो है उसका क्या बनाया गया? इनको चेयरमैन बनाया गया।
अब ये ट्रस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस ट्रस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो सोमनाथ टेम्पल का जो मैनेजमेंट होगा वो संभाला जाएगा इस ट्रस्ट के थ्रू। जो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, अगर कोई पूछे, क्वेश्चन में कभी आ जाता है या आपके जेकेएसएसबी के अंदर या किसी और स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वेयर इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो अब वहां पे आप बता सकते हो कि ये गुजरात के अंदर लोकेट करता है। अब चलो सोमनाथ टेम्पल के बारे में कुछ कवर करते हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, किसके अच्छे और ब्रीफ स्टडी करते हैं ताकि हमें इसके रिलेटेड सब कुछ पता हो। जहां पे सोमनाथ टेम्पल है वो कौन सा है? सौराष्ट्र की जगह है जो वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है, वहां पे ये टेम्पल लोकेट करता है। अब बात करें सोमनाथ टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग से हमारे, उनमें से इंडिया के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो आता है, और ये जो सोमनाथ टेम्पल ये डेडिकेट लॉर्ड शिवा को करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र के अंदर आता है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक है, और ये लॉर्ड शिव को डेडिकेट करता है। बात करें इसके हिस्ट्री की बात करें तो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने क्या करा था? अटैक करा था। और ये अटैक कब किया गया था? मीन्स कब किया गया था? 1025 के अंदर यहाँ पे 1025 एडी के अंदर इस सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक करा गया था। और अगर आपको कभी दिखे कि हु हैड अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल, तब आप वहाँ पे मोहम्मद गजनी का नाम दे सकते हो। और कब करा था? ये 1025 एडी के अंदर इन्होंने अटैक करा था। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट, ये स्कॉच के बारे में बात करेंगे। ये स्कॉच होता क्या है, किस तरीके से इसको समझाएं। तो किस मिनिस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया या रिसीव करा? तो वो रिसीव करा है ट्राइबल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उन्होंने क्या करा? इस अवार्ड को क्या करा है? रिसीव करा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड था 2021 का, जो जेएनयू के अंदर दिया गया था, वो किसको मिला था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर वो कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के क्या है? मिनिस्टर है। अभी काफी चेंज हुए हैं, लेकिन मैंने उसी तरीके से लिखा है जो अभी रिसेंटली है, तो उन्हीं का मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर मेंशन करा है। बात करें जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन को कितना एरेडिकेट कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है? ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस के अंदर, उसके लिए यहाँ पे स्कॉच अवार्ड को दिया जाता है। और ये स्कॉच अवार्ड क्या है? बहुत ही अच्छा है। और जो इस बार जो समिट हुआ स्कॉच का वो कौन सा था? 70वां, यानी 70th स्कॉच समिट था। अब ये स्कॉच अवार्ड एक प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर इंस्टीट्यूटेड बाय स्कॉच ग्रुप इन, यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर जो स्कॉच ग्रुप है, एनडी का मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली, तो उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये बात आपको कंप्लीट होगी। स्कॉच अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। और ये कौन सा था? 17 स्कॉच समिट था। इतना भी अगर आप रखोगे। और स्कॉच अवार्ड क्यों दिया जाता है? कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के अंदर ये देखा जाता है, और ये वर्चुअली इस बार दिया गया ड्यू टू कोविड-19, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई द फाइटर प्लेन इन द रिपब्लिक डे परेड? ऐसी कौन सी पहली महिला जिसने रिपब्लिक डे जो 2021 के अंदर हुआ था, उन्होंने क्या करा था? मीन्स जो फाइटर प्लेन था उसको उड़ाया था। तो उनका नाम क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। यानी भावना कांत ऐसी एक लेडी है, पहली वुमेन बन गई हमारी इंडिया की, जिन्होंने 26 मीन्स यहाँ पे जैन के अंदर, यानी रिपब्लिक डे पे अंदर क्या करा था? मीन्स फाइटर प्लेन को उड़ाया था। फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू कम्बैट, देखो यहाँ पे है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर कम्बैट मिशन इन ए फाइटर जेट। तो ये इनकी एक और बात आपको याद रखनी कि जो भावना कांत है वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने कम्बैट मिशन के लिए भी, फाइटर जेट को उड़ाने के लिए भी इनको क्या करा था? इन्होंने क्वालिफाई करा था। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़रूरी याद रखनी है। और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये है कि रिसेंटली हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, आप सभी को पता है कि जो स्टार्टअप इंडियन कैंपेन था 2016 के अंदर शुरू हुआ था, तो कितने साल पूरे हुए इसके अंदर? तो आपको पता है कि 2021 के अंदर 16 डेट जब आई होगी तो तब इसके कितने ईयर कंप्लीट हुए? 5 ईयर कंप्लीट हुए। बात करें, मैंने अभी बताया ये 16 जनवरी 2016 को शुरू करा गया था। इंडियाज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली जी के द्वारा इस जो प्रोग्राम को था, यानी कैंपेन को शुरू करा गया था। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, देखो यहाँ पे मैं इसको मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि मार्क कर सकता हूँ, आई विल ट्राई। देखो यहाँ पे, हु हैज़ डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस रक्षिता फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, यानी सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल के लिए किसने यहाँ पे एक बाइक को डेवलप करा जिसका नाम रक्षिता है? क्या नाम इसका? रक्षिता है। तो वो किस सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल के लिए करा गया? सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है उसके लिए, और डीआरडीओ के लिए। यहाँ पे किसके लिए? डीआरडीओ के लिए ये क्या क्या करा गया है? ये जो रक्षिता है, जो एम्बुलेंस है, एक बाइक एम्बुलेंस है, वो तैयार करी गई है।
अब ये क्या हेल्प करेगी, ये सोल्जर्स को मदद करेगी जो इंजरीज जब होंगी इनकाउंटर्स के टाइम पे, उनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने में इनकी क्या करेंगी, एज ए एम्बुलेंस एक्ट करेंगी। आई होप ये वाला जो स्लाइड थी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब बात करें यहाँ पे दूसरे पेज की बात करें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी जानने के लिए है। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस के बारे में उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ देखो यहाँ पे इस करंट अफेयर का सबसे बड़ा यही है ना कि करंट अफेयर, इसके बारे में हम बात करें। जो सीआरपीएफ है, जो सीआरपीएफ वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। क्या पहली बार कब फॉर्म हुई थी, ये 27 जुलाई 1939 को फर्स्ट टाइम ये क्या करी गई थी, ये फॉर्म करी गई थी। इसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीआरपी कहा जाता था, जिसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम रखा गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और लेकिन इसका जो सीआरपी से जो इसका नेम था वो चेंज करा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो एक एक्ट था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो 1949 एक्ट था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो दिसंबर 28 1949 को ये एक्ट मीन्स आया था, इसके अंदर इसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया था। अब इसको मिनिएचर इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि आप सीआरपीएफ को किस नाम से दूसरे जानते हैं, आप मिनिएचर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और प्रेसिडेंट इनके अभी कौन है, कुलदीप सिंह है। और फॉर्मर इससे पहले जो कुलदीप प्रेजेंट यहाँ पे है, और जो फॉर्मर थे वो एपी महेश्वरी थे। उसके बाद इसके अगर आईजी की बात करें, आप सीआरपीएफ के आईजी की बात करें तो पीएस रैनपेस जो है, रानीपेस, ये अभी क्या इसके आईजी हैं। और सीआरपीएफ का मोटो क्या होता है, सर्विस एंड लॉयल्टी। अगर आपने इस बार 2022 की परेड देखी होगी, रिपब्लिक देखी, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को बता रहे थे वो, नेशनल टीवी पे काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया भी था। अब यहाँ पे और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन एयरलाइन कंपनी ऑल वुमेन पायलट टीम फ्ली ओवर नॉर्थ पोल ऑन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एयर रूट। जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एयर रूट है नॉर्थ पोल की ओर, वो कौन सी इंडियन एयरलाइन कंपनी ने वहाँ पे उड़ान भरी है, तो वो कौन है, एयर इंडिया। कौन है वो, एयर इंडिया ने यहाँ पे बढ़ी। और कहाँ कहाँ से कहाँ तक ये उन्होंने फ्लाइट करी थी, यानी यहाँ पे ये जो पायलट की टीम थी वो गई थी तो सैन फ्रांसिस्को से लेके बेंगलुरु तक उन्होंने ये उड़ान भरी थी। लगभग ये 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने क्या करा है, ट्रेवल करा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडियन रेलवेज हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड। बात करें इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट ट्रेन थी, उसने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करा। ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्राइट ट्रेन, तो इस अगर बात करें इस फ्राइट ट्रेन का नाम क्या है, तो इस फ्राइट ट्रेन का जो नाम है वासुकी है। वासुकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडियन रेलवे ट्रेन है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, वासुकी है। अब ये हिस्ट्री कैसे क्रिएट करी गई है, 5 ट्रेन को जुड़ा के एक ट्रेन के अंदर ये बनाया गया। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग 5 ट्रेन, यानी जो 5 रेलगाड़ियाँ हैं उनको ज्वाइन करके एक रेलगाड़ी को बनाया गया है। यानी यहाँ पे किसकी अगर लंबाई की बात करें तो काफ़ी लंबी है, यहाँ पे 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन की क्या है, लंबाई है। तो समझ लो इसका नाम क्या है, वासुकी है। तो ये काफ़ी इशू है, तो इसके लिए आप इसका याद रखें। अब यहाँ कहाँ कहाँ से ये ऑपरेट करी जाती है, चलाई कहाँ जाती है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से लेके ये जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर इसको ऑपरेट करा गया है। डिस्टेंस ट्रेवल 224 किलोमीटर इसने ट्रेवल, सबसे पहला जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा था वो कहाँ से, बिलाई टू कोरबा, यहाँ पे 7 घंटे के अंदर इसने क्या करा था, ये डिस्टेंस 224 किलोमीटर का क्या करा था, ट्रेवल करा था। अब इसके बाद इससे पहले की जो थी, जो लंबी ट्रेन थी वो शेषनाग थी। कौन सी थी, शेषनाग ट्रेन थी, जो 4 ट्रेन को कनेक्ट करके बनाई गई थी। लेकिन ये वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर आपको 5 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 5 ट्रेन की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है। बात करें अभी एट प्रेजेंट हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो जो रेलवे मिनिस्टर अभी जो, पहले तो आप जैन की बात करें जिस टाइम ये रेल थी उस टाइम पीयूष गोयल थे, लेकिन अभी 7 जुलाई 2021 के बाद यहाँ पे अश्वनी वैष्णव को यहाँ पे नया रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये बात भी आपको नोट रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद और करंट अफेयर की बात करें, हु लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। काफ़ी अच्छी स्कीम है, ये लॉन्च करी गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यानी यहाँ पे होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी के द्वारा ये यहाँ पे स्कीम को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी आपको ऑफिस के अंदर जब आप किसी सिस्टम के लिए जाते थे तो आपको बार बार हर एक दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। यू हैव नाउ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो किसके द्वारा शुरू करी गई, अमित शाह जी के द्वारा शुरू करी गई है। अब इससे क्या हेल्प पहुँचेगी, यानी 2021 के अंदर शुरू करी गई है। इससे ये आपको होगी कि जल्दी से जल्दी आप अपने काम को क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा, एक ऐसा क्रिएट करा जाएगा जिसपे आपकी जो यानी क्लियरेंस होगी वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बात करें इंडिया प्रोड्यूस, अगर बात करें 72% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, यानी बात करें क्योंकि यहाँ पे
इंडिया के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रोल क्यों है? क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा ऑपरेट करने के लिए, डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है। और इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं एट प्रेजेंट यहाँ तक 72% इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कोल से जनरेट करी जाती है, और यहाँ पे अभी आपको कोल की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। काफ़ी ये एक इशू था दिसंबर और जो नवंबर की करंट अफेयर होगी उसके अंदर मैं इसको कवर करूंगा। और कोल मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? प्रहलाद जोशी हमारे यहाँ पे अभी के एट प्रेजेंट के कोल मिनिस्टर हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली विच गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको आप क्या कहते हैं? पीएसयू कहते हैं। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पीएसयू की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, जिन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है प्रयास। अब यहाँ पे ये प्रयास किसके द्वारा शुरू करा गया, कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईओसी कहते हैं। इसके द्वारा जो प्रयास इनिशिएटिव है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तहत शुरू करा गया है। अब इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, एम क्या है? ये क्या करेगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके जो फ्यूल स्टेशंस को होगा तो वहाँ पे उनको एड्रेस करेगी, संबोधित करेगी और उनको देखभाल करेगी कि किस तरीके से इनके अंदर आपकी नीड्स है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको देनी है। उसके बाद एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर खेलो इंडिया हाइस्ट हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड। आपको पता ही ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर यहाँ पे इसको करवाया गया था, लेकिन कौन सा ये प्लेस है? तो चिकतान यहाँ जगह का नाम है जो करगिल के अंदर है। तो वहाँ पे जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो जैन के अंदर हुआ था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, विच गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द प्राइज मनी ऑफ द प्लेयर हु वॉन गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक बाई 3 to 4 times। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्राइज मनी को बढ़ाया गया है उन प्लेयर्स के लिए स्पेशली जो गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर 3 या 4 बार। तो वो स्टेट कौन सी है? राजस्थान स्टेट है। अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स के अंदर तो आपको 3 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ जो पहले 75 lakhs मिलता था उसकी जगह पे आपको अब 3 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, इनरिच करने के लिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अब राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। अब सिल्वर मेडल अगर आप किसी ओलंपिक्स में जीतते हैं तो आपको 2 करोड़ दिया जाएगा अगर आप राजस्थान से। अगर आप ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो आपको 1 करोड़ का यहाँ पे कैश प्राइज या प्राइज मनी दिया जाएगा। उसके बाद इंडिया फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क जो यहाँ पे है, इंडिया की पहली जो स्काई पार्क है SKI जो स्काई पार्क है वो कहाँ पे किस स्टेट के अंदर ओपन करी गई है? तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपन करी गई है। और जहाँ पे स्टेट के इंडोर स्की पार्क को ओपन करा गया उसका नाम है कुर्फी। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुर्फी जो शिमला के अंदर आता है, तो वहाँ पे इस इंडोर स्काई पार्क को क्या करा गया है? ओपन करा गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द विंग्स कैंपेन। किस गवर्नमेंट ने विंग्स कैंपेन को क्या करा है? शुरू करा है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको जैन के जो आप नहीं देखी तो आप एक बार जैन के अंदर देख लें कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, और ये आप मेरे को बताएंगे भी कि जो गर्ल चाइल्ड डे है वो हम कब मनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक इनिशिएटिव शुरू करा गया था, जो इनिशिएटिव क्या था? विंग्स कैंपेन का इनिशिएटिव था जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। और इस मध्य प्रदेश पंख अभियान है। ये कौन सा अभियान है? ये एक पंख अभियान है। तो आपको ये बताना है, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। जो 24 क्या होता है जैन होता है उस टाइम पे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो 2021 का जो था क्या मेन इसका जो एम था वो था हाईलाइट द इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय गर्ल्स। तो इस तरीके से आपको ये याद भी रखना है। अब ये पंख अभियान क्या है? ये लॉन्च अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके अंडर इस वाली जो कैंपेन को लॉन्च करा गया है। अब पंख किसके लिए स्टैंड करता है? P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, N फॉर नॉलेज, K फॉर नॉलेज और H फॉर हेल्थ। यानी पंख P प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ के लिए ये पंख क्या करता है? स्टैंड करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। किसके अंदर शुरू करा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर इसको कैंपेन को स्टार्ट करा गया है। उसके बाद विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। किस स्टेट ने अपना पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन लॉन्च करा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। यानी यहाँ से देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश हर एक चीज़ के अंदर आगे देखने को मिलती है। और उसका चैनल का जो रेडियो स्टेशन उसका नाम क्या रखा है? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ये आपको ये याद रखना है कि उसका नाम क्या रखा गया? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करा गया है? तो ये रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करा गया। अब इसका एम क्या रहेगा? अब सबसे पहले इसका एम क्या रहेगा?
इट विल हेल्प इन इन्हेंसिंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट। तो ये क्या करेगा कि यूथ के अंदर एक अच्छा एनर्जी को फोस्टर करेगा, जिसकी वजह से कल्चर और ट्रेडिशन जो स्टेट का है उसमें आपको काफ़ी अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी, इनरिचमेंट होगी। जहाँ पे अब हम अपने ट्रेडिशन कल्चर को फॉरगेट करते जा रहे हैं, वहाँ पे इस एक ऐसे इनिशिएटिव से हिमाचल प्रदेश के सरकार ने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? श्री जयराम ठाकुर जो है अभी आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और आपको यहाँ पे इनके बारे में जानने को दिखने को मिलेगा। हिमाचल की कैपिटल कहाँ है? शिमला, आप सभी को पता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन एक शुरू करा गया है। वॉज अनाउंस्ड बाय द सीएम ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के सीएम के द्वारा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन शुरू करा गया? तो वो गुजरात स्टेट है। उसके बाद इसका क्या है कि इसका मेन मोटो क्या है? जो वेस्ट लैंड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या करा जाएगा? 30 साल की में जो टर्म होगा उसको लीज पे दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर फार्मिंग करी जाए, फार्मिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर हो, मेडिसिनल क्रॉप्स को उगाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ों को बढ़ोतरी दे सकते हो और एक अच्छा योगदान दे सकते हो। क्योंकि ऐसे बेकार जो बंजर जो ज़मीन पड़ी है वेस्ट लैंड, उसको कहीं ना कहीं यूज़ में लाया जाए और उसका भरपूर फायदा भी उठाया जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसके पीछे? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, जो फार्मिंग ऑफ हर्बल प्लांट्स हैं जिनसे मेडिसिनल प्लांट्स आगे उनको अपलिफ्ट में मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ेगी एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी के ऊपर भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रही है, उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी को पता है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर है, इसके अंदर आपको जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मीन्स क्या रहती है? अपॉर्चुनिटी रहती है। अब गुजरात के सीएम की बात करें तो विजय रूपानी थे पहले फॉर्मर सीएम, लेकिन अभी करंट जो सीएम है वो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है, जो एक 17 सीएम है गुजरात के, जिन्होंने यहाँ पे जो क्या ओथ कब ली थी? 13 सितंबर 2021 को ये नए सीएम बने हैं गुजरात के। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ए सोर्स ऑफ लिथियम हैज़ बीन फाउंड? तो ये यूपीएससी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कभी मैप के अंदर देखें तो आपको पता है कि लिथियम की ओर काफ़ी कहाँ पे देखी जाती है, और रिसेंटली कौन सी स्टेट लिथियम के बारे में न्यूज़ में थी, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जो कर्नाटका स्टेट थे उसके अंदर वहाँ पे एक लिथियम का एक सोर्स फाइंड करा गया, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पे ये फाउंड करा गया है। और ये फाउंड करा गया है कि इस जगह पे लगभग 1600 टन लिथियम कोर है। तो यहाँ पे लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके भी यूज़ देखेंगे कि लिथियम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। करंट अफेयर अगर मेरे को पढ़ानी होती तो मैं सिंपल सा बता देता, लेकिन इसके यूजेस क्या होते हैं लिथियम के, ये पूछे जाते हैं अक्सर। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब बात करें, इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट लोकेशन डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ मैनी लिथियम डिपॉजिट लोकेशन वी हैव इन इंडिया, या फर्स्ट लिथियम लोकेशन आप बताओ वो कौन सी है? तो ये आपको मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहाँ पे आपको 1600 टन ऑफ लिथियम कोर देखने को मिला है। अब लिथियम का यूज़ क्या होता है? आप लिथियम का यूज़ एलोस को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बनाने के लिए, जिसके अंदर आपका स्टीम सेल आता है, इनको बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैपटॉप्स को बनाने के लिए भी लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं। फॉर विच वी यूज़ लिथियम, प्रोड्यूस यूजफुल एलोज, ये बताया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैपटॉप्स, इस तरीके पूछे तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑल ऑफ द अबव है या 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो अगर है तो सभी को आप क्या कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे टिक कर सकते हो। बात करें फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया, ये तो कोर की बात करें, लेकिन लिथियम रिफाइनरी हमारी इंडिया के अंदर है, वो कहाँ पे सेटअप करी गई है? गुजरात के अंदर सेटअप करी गई है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको बात बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया है लार्जेस्ट और बिगेस्ट सप्लायर एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। तो यहाँ से देखो, इस इंटरनेशनल एक कवर भी यहाँ पे जियोग्राफिकल एक फिनोमिना से भी हमने इसको टच करा है, जियोग्राफिकल वे से भी हमने इसको समझने की कोशिश करी है। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट रिजर्व्स ऑफ रेयर मेटल वेनेडियम, टाइटेनियम वेनेडियम 22 एटॉमिक नंबर है इसका, आई थिंक सो। अगर मेरे को याद नहीं है तो आप देख लें, चेक कर लें एक बार, मैं अपने दिमाग से लगाओ जो मेरे माइंड के अंदर है। तो यहाँ पे इन विच स्टेट रिजर्व ऑफ रेयर मेटल वेनेडियम बीन फाउंड, वेनेडियम की स्टेट के अंदर ये फाउंड करा गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये फाउंड करा गया था, जो राइजर मीन सनराइजर स्टेट भी मानी जाती है इंडिया की। पहली बार सूरज की किरण इसी स्टेट में पड़ती है। अब वेनेडियम क्या है, यानी ये यहाँ पे एलो को बनाने के लिए, एलो को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर यहाँ पे वेनेडियम का यूज़ किया जाता है। इन विच इंडस्ट्री वी यूज़ वेनेडियम पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री और एलो को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया है, उस फेस्टिवल का नाम है मकर
वेलाकू मकर विलाकू फेस्टिवल है जो अभी अभी 2021 के अंदर सेलिब्रेट करा गया था। कहाँ पे? जो सबरीमाला टेम्पल है। जो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? केरला के अंदर है। जो द टेम्पल सबरीमाला टेम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ पे लोकेटेड है, तो केरला में। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि सबरीमाला जो टेम्पल है केरला के अंदर है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा, लेकिन मैं रिपीट उतने टाइम से कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा मैराथन हो जाएगा तो आप भी थोड़े से बोर हो जाएंगे। सो दिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ जो मकर संक्रांति थी। जो मकर संक्रांति 14 को मनाते हैं, तो उस अवसर पे इस फेस्टिवल को मनाया गया। अब बात करें सबरीमाला टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है। देखो यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इकोलॉजी नेशनल पार्क के हिसाब से, टाइगर रिजर्व के हिसाब से। तो यहाँ पे सबरीमाला जो टेम्पल है इज लोकेटेड इन द परियार टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला टेम्पल है? तो परियार टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप यूपीएससी के हिसाब से बात कर लो, पीएससी के हिसाब से बात कर लो, स्टेट लेवल जेके एसएसबी के हिसाब से बात कर लो, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेट करी गई है। जो सबरीमाला टेम्पल है वो लॉर्ड अयप्पा को, जो एक सोत के गॉड माने जाते हैं, उनको ये डेडिकेट करा जाता है। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसके सबरीमाला टेम्पल के अंदर आपको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही थी। जो वुमेन जो थी उनको अंदर यहाँ पे नहीं जा सकती थी, जो मेंस्ट्रुएशनल स्टेज जब होती थी उनकी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक फैसला दिया गया है। और कब दिया था? जो सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को यहाँ पे जो वुमेन की एंट्री थी, जो उस पर क्या लगा था, एक प्रतिबंध लगा था, उसको ओपन कर दिया, एंट्री शुरू कर दी। इसके थ्रू अब क्या कर सकते हैं, सबरीमाला टेम्पल जहाँ पे पहले वुमेन को अलो नहीं था, वो वहाँ पे अब वुमेन जा सकेंगे। इट मीन्स अब हर एक एज ग्रुप की जो वुमेन्स है वो वहाँ पे इस टेम्पल के अंदर इंटर कर पाएंगे। उसके बाद एक और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट रोड टनल बोरिंग मशीन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? टनल सभी बनाते हैं, अटल टनल अभी अभी जो सर्टिफाइड हुआ है वर्ल्ड गिनीज बुक के अंदर हाईएस्ट टनल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टनल को बोर करने के लिए, उसको टनल को बनाने के लिए लार्जेस्ट रोड टनल बोरिंग मशीन एक बनाई गई है। कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब लार्जेस्ट टनल कौन सा है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जिसको आप चनैनी नाचनी टनल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लेंथ अगर आप बात करें तो 9.2 है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। बट बहुत ही जल्दी यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा। जो जोजिला टनल बन रहा है हमारा, तो उसके से ये रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जो जोजिला टनल है उसकी जो लंबाई है लगभग 14.15 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। और ये यहाँ का एशिया का लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनेगा। तो इसीलिए आपको ये भी रखना। और ये कहाँ से कहाँ है? सोनामर्ग और करगिल से के बीच में ये टनल को बनाया जा रहा है, ताकि ये जो लेह लद्दाख से जो कनेक्टिविटी है उसको बनाया जाए। तो आप यहाँ पे अब देखो, इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि क्वालिटेटिव कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक छोटी वीडियो, इन एक वीडियो में सिर्फ चढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ से पता चले कि आप लोगों को रियल में चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो आई विल नेवर अपलोड। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो सृष्टि गोस्वामी है, बिकेम द सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर वन डे ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो 24 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको ये बताना है, पिछले साल 2021 की बात हो रही है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो किस स्टेट की जो सृष्टि गोस्वामी थे, जिनको एक दिन का सीएम बनाया गया था, वो उत्तराखंड स्टेट के सीएम बनी थी। और बात करें, ये बीएससी एग्रीकल्चर जो की स्टूडेंट है और आईआईटी रुड़की से ये कर रही थी, अपनी बीएससी कर रही थी, और आई होप अभी कर भी रही होंगी, क्योंकि इनके बारे में उतना डीप से नहीं बताया गया था कि इन्होंने कर ली थी या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की ओर चलते हैं। और करंट अफेयर में सांची स्तूपा था, प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट से आपको पता है इंडियन आर्किटेक्चर का। अब ये यहाँ पे किसने बनाया? तो एम्परर अशोका ने जो सांची स्तूपा था उसको बनाया था। जो मौर्यन, जो अगर अशोक की बात करें, वो कौन सी डायनेस्टी से थे? मौर्य डायनेस्टी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी, जिसने सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर आपको आर्मी देखने को मिलेगी। तो ये लगभग यहाँ पे अगर आप बात करें ना, अशोका की बात करें, तो इन्होंने लगभग यहाँ पे 250 BC से लेके 232 BC तक क्या करा था? राज करा था। 232 BC, लगभग 3rd सेंचुरी की बात हो रही है। कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? थर्ड सेंचुरी की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ से आपको मैंने हिस्ट्री का जो आपका एंशिएंट का टॉपिक वो भी कवर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे इट इज़ द प्लेस वेयर हिज वाइफ देवी वाज बर्न। ये वो जगह है सांची जहाँ पे जो अशोका की जो मिसिस थी, जो बीवी थी, उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे ही इसी जगह पे इन दोनों की शादी भी हुई थी। तो इस तरीके से भी आपको देखो कहानी के हिसाब से भी पता चल ही पड़ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जानने को भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बात करें सांची स्तूपा की बात करें, ये पॉलिश सैंडस्टोन पिलर है जो इरेक्ट खड़ा करा गया है साइड ऑफ मैन तोराना गेटवे। एक नाम है गेटवे का जिसका नाम है तोराना गेटवे, जिसको अशोका कहा जाता है, कॉल्ड अशोका भी कहा जाता है इस गेट को। तो वहाँ पे इसको खड़ा करा गया। अब पिलर की बात करें तो आपको इस पिलर की झलक देखने को मिलेगी। नेशनल जो एम्बलम है उसके ऊपर भी इसी स्तूपा के जो पिलर है, जो सांची स्तूपा है, उसको शो करा गया है पिलर को।
और यहाँ पे इसी अशोका पिलर से इसको ड्राइव करा गया। जो आपको नेशनल एम्बलम पे दिखता है वो यहीं पे अशोका पिलर, जिसको आप तोराना गेटवे के कहते हैं, यानी जो साइड ऑफ मैन तोराना गेटवे जिसको आप अशोका कहते हैं, अशोका पिलर कहते हैं, उसमें से यहाँ पे नेशनल एम्बलम को लिया गया है। अब सांची के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। अगर बात करें, अब सांची की बात करें तो सांची के बारे में कौन सी बातें जाननी जरूरी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको रिवीजन भी करवाती हैं। सांची इज आल्सो नोन एज काकनिया, काकनिया। तो ये बात आपको याद रखनी कि सांची को दूसरे किस नाम से जाना जाता है और काफ़ी रेयर पढ़ाया जाता है ये, तो कनकिया के नाम से ये इसको जाना जाता है। और यहाँ पे ग्रेट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पे आपको सांची के अंदर देखने को मिलेगी। इस पिलर के अंदर, अशोका पिलर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक दूसरी बात है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉर्ड बुद्धा हैड विजिटेड सेवरल प्लेसेस, जस्ट मेंशन किए जाते हैं वहाँ पे आपके पास कुछ प्लेसेस, एंड प्लीज चूज द करेक्ट वन। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको सांची की बात करें तो यहाँ पे कभी भी लॉर्ड बुद्धा विजिट नहीं करे थे, ये बात आपको याद रखनी है। दिस प्लेस इन सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड बाय टेलर, और किसके ने? टेलर ने 1818 ईस्वी के अंदर, लगभग 19th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। तो ये भी यहाँ पे इसका नाम क्या था? टेलर सांची स्तूपा, जिन्होंने पहली बार डिस्कवर करा था। तो इससे आपको देखो कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करें, वेयर इंडियाज फर्स्ट माइग्रेंट सेल इज ओपन। पहला इंडिया का माइग्रेंट जो सेल है वो कहाँ पे ओपन करा गया? तो वो गुजरात के सूरत शहर के अंदर इसको ऑपरेट करा गया है, ओपन करा गया है। अब ये किस स्कीम के द्वारा इसको ऑपरेट करा गया, माइग्रेंट सेल को ऑपरेट करा गया? तो जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम थी उसके तहत, जिसको आप क्या कहते हैं? NULMS कहते हैं। ये जो मीन्स इनॉग्रेट करा गया था, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे पेट्रोलियम नेचुरल गैस के, उसके द्वारा यहाँ पे माइग्रेंट सेल को ओपन करा गया। और इंडिया का पहला माइग्रेंट सेल ओपन हुआ है सूरत, गुजरात के अंदर। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ किसके अंदर हुआ है? जो एक स्कीम थी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम, इसके बारे में आपको स्कीम्स की जब मैं सीरीज शुरू करूँगा तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी कवर करवा दूंगा। और यहाँ पे याद रखना है ये कैबिनेट मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके मिनिस्टर अभी धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने ये शुरू करा था। अब इसका एम क्या था? ताकि जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेट होते हैं एक जगह से, कभी इंटरनल माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है और इंटरनेशनल आउटसाइडर माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है, टू हेल्प माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्किंग इन वेरियस इंडस्ट्री इन सूरत। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो लोग हैं जो यहाँ पे सूरत के अंदर काम करने को जाते हैं, तो वहाँ पे इनको रहने सहने के लिए आप इनको क्या मिले? जगह मिले और कोई काम देखने को मिलेगी। अब प्रेजेंट यहाँ पे अगर बात करें, अभी प्रेजेंट कोल मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हमारे। पहले कौन थे? पहले यहाँ पे पेट्रोलियम के मिनिस्टर कौन थे जब ये शुरू करा गया था? धर्मेंद्र प्रधान। अभी चेंज हो गए हैं तो हरदीप सिंह पुरी, आपको ये याद रखना है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात को कवर करते हैं। देखो, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेट स्टार्टेड? तो ये काफ़ी है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेट स्टार्टेड? कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर या किस जगह पे पहला नॉर्थ ईस्ट स्कूल जो था, जो फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के तहत ओपन करा गया है? तो वो शिलोंग के अंदर ओपन करा गया है। अब यहाँ पे इसका नेम क्या है? आसाम राइफल पब्लिक स्कूल है। इसका नाम क्या है? आसाम राइफल पब्लिक स्कूल है। जो किसके द्वारा शुरू करा? किरण रिजिजू, जो वहाँ के CM एट प्रेजेंट, उनके द्वारा यूज़ किया गया। किरण रिजिजू CM नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। तो आई फॉरगेट कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू, उनके द्वारा ये यहाँ पे स्कूल ओपन करा गया है। इसका स्कूल का ओपन क्या है? टू आइडेंटिफाई, ताकि जो यंग टैलेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक अच्छे लार्ज स्केल पर, और एक सबसे पहले में जल्दी अर्ली स्टेजेस के अंदर एक बच्चे के अंदर टैलेंट को जाना जाए, और उसके बाद उसकी एज के साथ साथ उसके अंदर उन चीज़ों को, उन स्किल्स को, उस खेल को और बढ़ावा दिया जाए ताकि वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन के काबिल बन पाए, और इसी तरीके से हमारे ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दे, हमारी खेल के अंदर हमारी कंट्री को काफ़ी आगे ले, खेलों के प्रति इनको एक अपलिफ्टमेंट डाले, ताकि दूसरा यूथ भी क्या हो? मोटिवेट हो, क्योंकि खेल की वजह से आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहती है, मेंटल भी अच्छी रहती है, और आप अच्छे तरीके से अपने नाम भी, फेम अच्छी कमा सकते हो। उसके बाद विच स्टेट यार यूटी प्लेड होस्ट टू द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021? जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थी वो किस स्टेट के द्वारा होस्ट करी गई थी? तो या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, तो वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू करी गई थी, और ये सेकेंड एडिशन था खेलो विंटर इंडिया का। द फंक्शन वॉज इनोग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी। जो PM हमारे, उनके द्वारा वर्चुअल मोड के द्वारा इस फंक्शन को इनोग्रेट करा गया था। उसके बाद यहाँ पे कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन वाज इनोग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? यहाँ पे एक पाइपलाइन हुई है, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन वाज इनोग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? तो वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस गैस पाइपलाइन का इनोग्रेशन करा गया था। लगभग ये 450 मीटर लंबी पाइपलाइन है, जो केरला विद कर्नाटका है। 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है फ्रॉम केरला विद कर्नाटका। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, अभी मैंने आपको बताया, वो हरदीप सिंह पुरी हैं। तो एक बार इस लेंथ को आप देख लेना, 450
मीटर लॉन्ग पाइपलाइन है, तो ये यहाँ पे किलोमीटर में आएगा। 450 किलोमीटर ये लंबी आपको पाइपलाइन देखने को मिलेगी, जो किस कोच्चि से मंगलुरु के बीच में है। तो ये किसने शुरू करी थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड हिमतापक हीटिंग डिवाइस टू हेल्प द सोल्जर इन वेरी लो टेम्परेचर। यानी हमारे सैनिकों को अगर काफ़ी ठंड के अंदर, लो टेम्परेचर के अंदर रहना हो, उसके लिए एक यहाँ पे हिमतापक एक डिवाइस को डेवलप करा गया है, हीटिंग डिवाइस को। वो DRDO के द्वारा इसको क्या करा गया और इसको कहाँ पे डिप्लॉय करा जाएगा? ईस्टर्न लद्दाख के अंदर इसको हिमतापक, जिसका नाम है, इसको डिप्लॉय करा गया है। जो ये क्या है? डेवलपमेंटल रिसर्च, जो दिल्ली रिसर्च ऑफ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहाँ पे डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये यहाँ पे दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसके द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है। ये नेशनल न्यूज़ थी। अब हम स्टेट की ओर चलते हैं। आई होप पहले पार्ट के अंदर आपको इतना सफिशिएंट होगा। अगले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे, स्टेट न्यूज़ की बात करेंगे, और रिमेनिंग जितने भी हम उनको यहाँ पे फिनिश करेंगे। सो अभी के लिए यहाँ के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा, प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें हाउ वाज द नेशनल न्यूज़ ऑफ जनवरी मंथ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो करेंगे तो ताकि आपको भी बोर ना हो और एक सही टाइम के अंदर हम इसको फिनिश भी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल ट्राई टू कवर योर ऑल द वीडियोज़, ऑल द lectures, so that you will get help from my side to just make yourself revised for your preparation for your exam, upcoming exam. I hope you will do your best in upcoming exam. Wish you good luck for your upcoming exam. But this was only the video for from where you will come to know कि सर ने शुरू करी है, और आपका इंटरेस्ट अब शो करेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपको क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेगा। आप बात करें तो ये सारी इसी तरीके से आपको टिल दिसंबर, जनवरी 2022 और फेब का भी शुरू कर दिया मैंने। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। सभी आपको PDF भी दी जाएगी। तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके की PDFs आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरीके की आपको करंट अफेयर्स हेल्प कर रही है या नहीं करेगी। तो थोड़ा सा से आइडिया ले लें। आई होप बेनिफिशियल होगी साबित आपके लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन दूसरे यूट्यूब चैनल को ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर आपके पास टैलेंट हो, मटेरियल हो, तो आप किसी भी सोर्स से किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी स्टूडेंट की हेल्प से आप उनके स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। आई डोंट नीड योर money, I don't need your anything. If you want to give me something, then give me your blessings and try to help me so that we can cover maximum student, so that these all videos will help them to prepare themselves in their examinations. So thank you very much. Have a good luck ahead. Have a good one ahead. Enjoy your journey, and don't forget to mention the answer of this question. Should I start upcoming videos? Should I upload new videos or not? If you are not interested, then it's okay. I am not just interested to start the videos because I don't have time to start the videos. I don't have time to make the videos, so it will take me a lot of time. But for God's sake, if you want, then please mention, then I will upload next video. Thank you very much.